From the city of Chennai in India, we welcome you to the Divine Connection. भारत के चेन्नई शहर से हम अलौकिक संपर्क प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं। You know, Christmas fever is caught up. आप जानते हैं क्रिसमस का उत्सव अभी शुरू हो चुका है And everywhere people are thinking about the birth of Jesus Christ and trying to celebrate it in different ways. हर जगह पर लोग यीशु मसीह के जन्म के बारे में सोच रहे हैं और इसे अलग अलग तरीके से मना रहे And when हैं। you think about Christmas, different feelings can come to different people. जब आप क्रिसमस के बारे में सोचते हैं तो अलग अलग लोगों में अलग अलग महसूसीकरण होता Or है। if you are a father, you might be thinking of all the expenses that you have to incur. आप अगर पिता हैं तो आपको जो भी खर्चा करना है उसके बारे में आप सोच रहे Oh, होंगे। buying dress for the entire family and the celebrations and taking care of all the needs of different people. पूरे परिवार के लोगों के लिए कपड़े खरीदना और जो कुछ भी खर्चा है और सारी जरूरतें पूरी करना। So for some people, Christmas feels, oh, it's a lot of expense. कुछ लोगों के लिए क्रिसमस तो ऐसा है जैसे मानो कि इसमें बहुत सा खर्चा होता है। For some people, it may be a very difficult thing because many people have lost their loved ones during this pandemic. और कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत से लोगों ने इस महामारी के समय में अपने प्रियजनों को खोया है, इसलिए उनके लिए दुख की बात When है। they are thinking about this celebration, they have lost their very loved ones recently. और जब हम इस उत्सव के बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने तो अपने प्रियजनों को हाल ही में खोया है। If their loved ones died in this year, अगर उनके प्रियजन इस साल में मरे हैं and it must have been a very difficult feeling. तो सच में ये उनके लिए बहुत मुश्किल बात होगी। But whatever it is, understand all that is happening around us is really not going to change the meaning and purpose of Christmas. लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि हमारे आसपास चाहे कुछ भी हो, ये तो क्रिसमस के अर्थ को किसी भी तरीके से नहीं बदल सकता है। That is God coming into this world like a human being, like a baby. यानी परमेश्वर इस संसार में एक मनुष्य के रूप में आए, ये सच्चाई है। Jesus Christ, he was fully God and came into this world as fully man. यीशु मसीह जो कि पूरे परमेश्वर थे, वो इस संसार में पूरे मनुष्य बनकर आए, पूरे मानव बन गए। So that reality never changes. यानी ये जो वास्तविकता है ये कभी बदलती नहीं। At the same time, as the person of Christ, whatever blessings he brought into this world by coming into this world, लेकिन कुछ भी हो, जब प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में इस संसार में आए और जो आशीषें वो लेकर आए, that also doesn't change. वो भी नहीं बदलती हैं। Perhaps there may not be carol rounds. शायद हो सकता है कि कैरल्स के लिए बाहर न जाएं, There may not be big celebrations of Christmas programs. या क्रिसमस प्रोग्राम के बड़े बड़े उत्सव न हो, There may not be children program like how we usually do. और सामान्य रूप में जैसे हम बच्चों के प्रोग्राम्स करते थे शायद वैसे न करें। But the blessings of Christmas doesn't change. लेकिन क्रिसमस की आशीष बदलती नहीं, उसमें बदलाव नहीं आता है। The happiness, इसकी जो खुशी है वो नहीं बदलती। the joy the birth of Jesus Christ brings doesn't change. यीशु मसीह का जन्म जो आनंद लेकर आता है वो बदलता नहीं है, उसमें बदलाव नहीं। Because it is not concerned with what is happening around us. क्योंकि हमारे आसपास जो हो रहा है ये उससे संबंधित नहीं है। Our circumstances do not control the purpose of Jesus' birth. हमारी परिस्थितियां यीशु के जन्म के ऊपर नियंत्रण नहीं करती हैं। He came into this world to give us joy. वो इस संसार में केवल इसीलिए आए कि हमें आनंद दे, Joy about a world that we are going to enjoy forever and ever with Him. ऐसी दुनिया का आनंद जहां पर हमेशा हमेशा हम उसके साथ में रहेंगे और आनंद मनाएंगे, वो आनंद देने के लिए वो आए हैं। That's the kind of Christmas we are looking forward to this year. हम इस साल इसी तरह के क्रिसमस की अपेक्षा कर रहे हैं। But Christmas teaches many things to us. लेकिन क्रिसमस हमें बहुत कुछ सिखाता है। Many facts that sometimes we do not realize and casually pass it on. बहुत सी ऐसी सच्चाई है जो कई बार आमतौर पर हम उसे नहीं देखते और ऐसे ही उसे टाल देते हैं। Today, I want you to focus on the very first chapter of the book of Matthew. आज हम चाहते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय पर हम गौर करें। When you come to the very first chapter, verses 1 to 17, you find a lot of different names mentioned in the book. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से 17 तक हम बहुत से नामों की सूची देखते हैं। यहाँ पर बहुत से नाम हैं। It
talks about the genealogy of Jesus Christ. ये यीशु मसीह की वंशावली के बारे में हमें बताता है। You know, I know my father and his name, etc., and about him fully. देखिए, मैं अपने पिता के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनकी पीढ़ी के बारे में जानता हूँ। I know my grandfather and his name and his family a little bit. मैं अपने दादाजी के बारे में और उनके परिवार के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। I don't know about my great-great-grandfather. लेकिन मुझे मेरे परदादा के बारे में ज्यादा पता नहीं है। And there are many people who don't have ideas about their heredity and their descendants. और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी वंशावली के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। So sometimes we are not concerned about that. और कई बार हम इसके बारे में चिंता भी नहीं करते हैं। It's not going to matter anything. और इससे कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है। But the Jewish people were not like that. लेकिन यहूदी लोग ऐसे नहीं थे। They were very concerned with where they come from. वो कहाँ से आए हैं इसके बारे में वो बहुत परवाह करने वाले लोग थे। What tribe they belong to. और वो किस जनजाति के है उसकी परवाह करते So थे। when someone is writing a book like Matthew, अगर कोई मत्ती रचित सुसमाचार जैसी किताब लिख रहा है and at the very introduction he is giving so many names which is very boring to read for many people. और बिल्कुल शुरुआत में ही इतने नामों की सूची देता है जिसे कई बार पढ़ना बहुत ही बोरिंग होता है। Have you ever skipped that section? क्या आपने कभी इस वचन को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़े? Oh, I did many times. मैंने कई बार ऐसे किया And there है। are many people who do that many times. और बहुत से लोग हैं जो ऐसे अक्सर करते हैं। Especially when we were younger. और खास करके जब हम छोटे थे। Why all these names? You know, who's caring about all these names? Who is concerned about these names? ओ इतने नाम क्यों हैं? किसे इन नामों की परवाह You know, है? more than Matthew, if you go to Luke, the list is very long. अगर मत्ती से बढ़कर हम लूका में जाते हैं तो वहां पर सूची तो इससे भी बड़ी है, लंबी लिस्ट है। So very often we don't pay attention to these names. और अक्सर हम इन नामों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। But when you come to the Gospel of Matthew, 42 different names are mentioned. लेकिन जब आप मत्ती रचित सुसमाचार में आते हैं तो यहाँ पर 42 अलग-अलग नाम दिए गए And हैं। in those 42 names, you will find a lot of important people whom we don't usually consider to be a part of the genealogy of Jesus Christ. और जब हम इन नामों को देखते हैं तो इनमें बहुत से ऐसे नाम हैं जिसे यीशु मसीह की वंशावली के रूप में हम ध्यान भी नहीं देते हैं। हम तो उन्हें ऐसे ही पढ़ते हुए अनदेखा कर देते हैं। Because when you read 1:1, it says a record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Matthew 1:1. मत्ती 1:1 कहता है अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इस तरह से ये उसका पहला वचन शुरू होता है। So the promise was given to Abraham in the very beginning when God called him. बिल्कुल शुरू में ही जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम को प्रतिज्ञा दी गई थी, उससे प्रतिज्ञा की गई थी। And in the book of Genesis verses 3, in the 12th chapter, he finds through you all the nations will be blessed. और उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 3 में ये कहता है कि तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। So in this big list you find many names. Usually the Jewish tradition lists only the names of men in their genealogy. तो यहाँ पर इस सूची में आप पाएंगे कि यहूदी लोग जो हैं अपनी वंशावली में केवल पुरुषों का नाम लिखा करते थे, ये आप पाएंगे। But Matthew, on the contrary, lists many women in the Bible. लेकिन इसके विपरीत मत्ती बाइबल की बहुत सी स्त्रियों के बारे में भी यहाँ पर लिखता है। 5 different names of women are mentioned in this first book of the New Testament. नए नियम की इस पहली किताब के पहले अध्याय में 5 अलग-अलग स्त्रियों के नाम दिए गए हैं। In verse 3 you find Tamar mentioned. वचन 3 में आप पाएंगे कि तामार नाम बताया गया है। In verse 5 you find Rahab mentioned. वचन 5 में आप पाएंगे राहाब के बारे में बताया गया है। In the 5th verse you find Ruth. वचन 5 में आप रूत नाम देखते हैं। In the 6th verse you find Bathsheba. और वचन 6 में आप बेतशीबा नाम देखते हैं। Of course Mary, the mother of Jesus, is mentioned at the end. और फिर उसके बाद में अंत में यीशु की माता मरियम के बारे में भी बताया गया है। So sometimes we need to notice that these list of women who are involved in this genealogy list were considered very low in the society according to the Old Testament tradition. जब हम इन पुरानी वंशावली को देखते हैं तो आपको याद रखना होगा कि पुराने नियम में स्त्रियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, वंशावली में उनका नाम नहीं लिखा जाता। People like Tamar, जैसे कि तामार,
Rahab, Ruth, and Bathsheba. राहाब, रूत और बतशीबा। And I want to basically focus your attention on these names. और मैं आपका ध्यान इन नामों की ओर खास करके लेकर आना चाहता हूँ। And first of all, when you look at Tamar, सबसे पहले जब आप तामार को देखते हैं, we read about her story in the book of Genesis, the very first book in the Bible, 38th chapter, verses 1 to 30. हम बाइबल की सबसे पहली किताब उत्पत्ति अध्याय 38 में वचन 1 से 30 में उसके बारे में पढ़ते हैं। She was a Canaanite woman. वो एक कनानी स्त्री थी। She had an adulterous union with her father-in-law and had a baby, had two babies. और उसका अपने ससुर के साथ में गलत संबंध था और उसके द्वारा उन्हें पुत्र उत्पन्न Her हुआ। father-in-law Judah, who was already married to a Canaanite woman, and he gave birth to 3 children. उसके ससुर यहूदा ने पहले ही कनानी स्त्री से विवाह किया था और उसके द्वारा 3 बेटे उत्पन्न हुए थे। ये हम देख सकते हैं। One of the sons, marries Tamar and dies. उसमें से एक बेटा जो है वो तामार से विवाह करता है और उसके बाद में वो मर जाता है। So Tamar became a widow at a very young age, and according to the Jewish tradition at the time, the younger brother marries Tamar. और उस समय जो तामार है बहुत ही कम उम्र में विधवा हो जाती है और उस समय की यहूदी परंपरा के अनुसार पति के छोटे भाई को उससे विवाह करना चाहिए था। ये उस समय का रिवाज था। So that Onan, who was the brother actually who joined with Tamar, he did not want to produce any children for Tamar. छोटा भाई जो ओमान था वो तो तामार से विवाह करने के बाद अपने भाई के लिए कोई संतान उत्पन्न नहीं करना चाहता था। He was doing some unholy things in their relationship, so God struck him. वो अपने संबंध में अपवित्र काम कर रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसे मार दिया, उसे दंड दिया। Judah had another son who is probably much younger. यहूदा का एक और बेटा था जो कि शायद बहुत ही छोटा था। So he told Tamar, I cannot give him to you. तो उसने तामार से कहा कि मैं तुम्हारा ब्याह इसके साथ नहीं कर सकता हूँ। So she left away, and at one point of time, Tamar and Judah were in contact. Actually, what has happened was Tamar disguised herself and entered into an adulterous relationship with Judah, and they had 2 children through that relationship. और देखिए उस समय तामार तो चली जाती है लेकिन वो वहां पर इस तरह यहूदा के साथ में गलत संबंध रखती है और उसके द्वारा उन्हें 2 पुत्र होते हैं, उन्हें 2 बेटे होते हैं। Perez and Zerah were the 2 children. पेरेस और जेरा ये उनके 2 बेटे थे। So that is the story. Sometimes, when you think about the genealogy, like Jesus' birth, someone who is sinless, someone who is God's son, oh, his genealogy must be filled with very pure people, very good people. कई बार हम इस तरह से सोचते हैं, ओ यीशु की वंशावली, ये तो यीशु ऐसे थे जिसमें कोई पाप नहीं था, वो निर्दोष थे, तो निश्चय उसकी वंशावली में ऐसे लोग होंगे जो कि शुद्ध होंगे, जो कि पवित्र होंगे। If you think like that, then I want to tell you, God doesn't think like that. अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ऐसे नहीं सोचते। And he put some of these names in here. और उसी ने इनमें से ऐसे कुछ नाम यहाँ पर रखे हैं, ये नाम इस सूची में हैं। Perhaps he wants us to learn something from it. शायद वो चाहते हैं कि हम इससे कुछ न कुछ सीखें। And you look at another character here, there, Rahab. और फिर आप यहाँ पर एक और चरित्र को देखिए जिसका नाम था राहाब। You read about her in the book of Joshua. आप उसके बारे में यहोशू की किताब में पढ़ते हैं। When you read 2nd chapter verses 1 to 24, because it's a long passage, we are not reading it. यहोशू अध्याय 2 वचन 1 से 24 तक वचन का बड़ा भाग है, इसे हम यहाँ नहीं She पढ़ेंगे। was a prostitute in the city of Jericho. वो तो यरीहो के शहर में एक वेश्या थी, ऐसी स्त्री वो थी। So when the Israelite spies went into Jericho, जब इस्राएली भेदिए यरीहो में गए थे, that was when they found this prostitute and she accepted them into their home. और उस समय उन्हें ये वेश्या मिली और इस वेश्या ने उन्हें अपने घर में स्वीकार किया। And they stayed in her home. They were protected by this woman, and finally, because of her faith in the God of Israel, she let them out without any harm. और ये भेदिए इसके घर में रहें और उसका इस्राएल के परमेश्वर पर जो विश्वास था उसके कारण उसने इन्हें बचाया और इन्हें जाने दिया। She had faith in God, वो परमेश्वर पर विश्वास कर रही थी, the God of Israel. इस्राएल के परमेश्वर पर। And
her name is also included. और उसका नाम भी यहाँ पर यीशु की वंशावली में लिखा गया है। And we read the next name, Ruth, और फिर अगली स्त्री का नाम यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो थी रूत। a Moabite woman. ये एक मोआबीन स्त्री थी। Another woman who trusted God and followed Naomi, her mother-in-law, from her native place. ये एक और स्त्री थी जो कि अपनी सास नवमी पर भरोसा रखकर अपने देश को छोड़कर आई We थी। have a book listed in her name. उसके नाम पर बाइबल में एक किताब लिखी गई है। And Bathsheba, और फिर अगला नाम है we बेतशीबा। read about her in 2 Samuel chapter 11. हम इसके बारे में दूसरा शमूएल अध्याय 11 में पढ़ते हैं। There King David had an adulterous relationship with Bathsheba. यहाँ पर बेतशीबा के साथ में राजा दाऊद का गलत संबंध था, ये हम पढ़ सकते हैं। She too was coming from a pagan background. वो भी ऐसे ही नाशमान पृष्ठभूमि से आई थी। And we read about Mary, और हम मरियम के बारे में पढ़ते हैं a Jewish virgin. जो कि एक यहूदी कुंवारी स्त्री थी। ये एक यहूदी थी, She was God-fearing. वो परमेश्वर का भय मानने वाली At the थी। same time, she would have tolerated or accepted a lot of insults that would have come from people because she was pregnant as a virgin. और उसी समय शायद उसके बहुत से अपमान किए गए होंगे, तो उसे ताने मारे गए होंगे क्योंकि वो तो एक यहूदी थी और कुंवारी थी और उसकी शादी नहीं हुई थी और गर्भवती हुई। Even Joseph was considering to divorce her. यहाँ तक कि यूसुफ भी उसे तलाक देने की सोच रहा था, उसे त्यागना चाहता था। So you can understand what kind of ordeal all these people would have gone through in their lives. तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ये सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में किस तरह की बातों में से होकर गए होंगे। But I want to tell you, God included them in his genealogy. लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने इन लोगों को भी अपनी वंशावली में जोड़ लिया, इन्हें भी अपनी वंशावली में जोड़ You दिया। find a Canaanite woman. आप एक कनानी स्त्री को देखते You हैं, find a Moabite woman. आप एक मोआबीन स्त्री को You देखते find a हैं, Hittite woman. आप एक हित्ती स्त्री को देखते हैं, Jewish woman. यहूदी स्त्री को देखते A हैं, prostitute from Jericho. यरीहो की एक वेश्या को भी आप देखते Oh, हैं। what does that tell me about this God? ये सब मुझे इस परमेश्वर के बारे में क्या बताते This हैं? God who was born in Bethlehem 2000 years ago. ये परमेश्वर जो बेतलहम में 2000 साल पहले पैदा हुए थे। Oh, it shows this God accepts all people. ये दिखाता है कि ये परमेश्वर सभी लोगों को स्वीकार करते हैं, Anyone from any tribe. चाहे किसी भी जनजाति से कोई भी क्यों ना आए, सब लोगों को स्वीकार करते हैं। The only criteria is faith in the living God. इसके लिए बस एक ही मांग है कि जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखें। And I think that is the criteria God is looking for today in anyone's life who is seeking Him. मैं सोचता हूं कि आज परमेश्वर जो लोग उसे खोज रहे हैं, उनके जीवन में बस यही एक बात ढूंढते हैं। And I also understand from this genealogy that God reveals His grace in the lives of people used by Him. और मैं इस वंशावली से एक और बात सीखता हूं कि परमेश्वर अपना अनुग्रह इन लोगों पर देते हैं जिनका वो उपयोग करते हैं। When He calls them for His purposes, जब वो उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए बुलाते हैं, it is purely out of His grace. ये तो केवल उसके अनुग्रह के कारण ही है। You know why? When you consider their life, each one of them, you can see clearly none of them had any great qualifications in themselves except they had faith. अगर आप उनके जीवन को गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके जीवन में कोई भी महान विशेषता नहीं थी, बस उनके जीवन में विश्वास ही था। It is purely by the grace of God that they received this blessing in their life. केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही उन्होंने अपने जीवन में इस आशीष को प्राप्त किया। And I also realize when I see the list, whatever God promised, He makes it a point to fulfill. और मैंने इस सूची में ये भी देखा है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो उसे जरूर पूरी करते हैं। He fulfills His word, He fulfills His purposes without fail. और बिना चूके वो अपने वचन को, अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं, वो उसे पूरा करते हैं। He told Abraham in Genesis 12:3, उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 3 में उसने अब्राहम से कहा, I will bless those who bless you, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, and whoever curses you, I will curse. जो तुझे श्राप दे उन्हें मैं श्राप दूंगा, And all the peoples on earth will be blessed through you. और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। What a great news! What a great
a wonderful promise God gave to Abraham. परमेश्वर ने यहाँ अब्राहम को कितनी अच्छी प्रतिज्ञा दी है। And that's why it says the record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. और इसलिए ये कहता है कि अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, इस तरह से वो उसका परिचय करवा के देता है। And I want to tell you, my dear friends, whatever category you may be belonging to, or however you're feeling about yourself, what you feel about yourself doesn't matter. मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, आप अपने बारे में जो कुछ भी महसूस करते हैं, कैसा भी महसूस करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। But God knows you. परमेश्वर आपको जानते हैं। God is looking for people who put their trust in Him. परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उस पर अपना भरोसा रखते He हैं। is longing for people who are seeking Him. वो ऐसे लोगों को चाहते हैं जो उसे खोज रहे हैं। If you are someone who is seeking Him, अगर आप ऐसे हैं जो उसे खोज रहे you know हैं, the good news is for all people. शुभ संदेश तो बस यही है कि ये सभी लोगों के लिए है। That's what Christmas message said. क्रिसमस का संदेश यही तो कहता है। In Luke chapter 2 verse 9, he says, "But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all people." लूका 2:10 में ये कहता है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। So the message of Christmas is for all people. यानी क्रिसमस का जो संदेश है ये तो सभी लोगों के लिए है। This is not a Christian festival as many people think. जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो ईसाइयों का त्योहार है, ये ऐसी बात नहीं है। This is all human beings, all the world can celebrate this festival. ये तो ऐसा है जिसे सारे मानव, पूरा संसार इस उत्सव को मना सकता है। It is a good news for all people. ये तो सभी लोगों के लिए सुसमाचार Oh, है। you may be, we read, a Moabite or a Hittite, जैसे हमने पढ़ा है कि चाहे आप मुआबीन हो या हित्ती or हो, whatever background you may come from, चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से आए हो, whatever language you may speak, चाहे आप कोई भी भाषा बोलने वाले the हो, message of Christmas is for you. क्रिसमस का संदेश आपके लिए है। Looking at genealogy, that is what I learned. इस वंशावली को देखकर मैंने यही तो सीखा है। Jesus included people who had a lot of gray areas. यीशु ने ऐसे भी लोगों को जोड़ा जिनके जीवन में बहुत सी कमी घटियां थी, And they were included in God's purpose. और वो परमेश्वर के उद्देश्य में जोड़े गए। And if you are someone who is feeling sad and bad about your past, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने भूतकाल के बारे में दुख और बुरा महसूस करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने भूतकाल में गलतियां की हैं, He can change your situation. तो वह आपकी परिस्थिति को निश्चय ही बदल सकते हैं। And He never rejects people. और वो कभी लोगों का इनकार नहीं करते हैं, वो कभी लोगों को दूर नहीं करते In हैं। John chapter 6 verse 37, यूहन्ना अध्याय 6 वचन 37 में हम देखते हैं, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never drive away. जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी न निकालूंगा। इस तरह यीशु ने कहा। What a word, of confidence that's given in this verse. इस वचन में तो हमें भरोसे का वचन दिया गया है। Whoever comes to me, I will never drive away. और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। All these people we saw were added to the fold because of God's grace. ये सब लोग जिनके बारे में हमने देखा, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उनमें जोड़े गए। You can become a part of this fold. और आप भी इस भेड़शाला के भागी हो सकते हैं। You know how? जानते हैं कैसे? Ephesians 2:8 says, you have been saved by grace through faith. इफिसियों 2:8 कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से आपका उद्धार हुआ है। When God wanted to save us, जब परमेश्वर हमें उद्धार देना चाहते थे, He saves us only by His grace. वो केवल अपने अनुग्रह से ही हमें बचाते हैं। Because nothing else can definitely change us, transform us. क्योंकि और कोई हमें इस तरह से बदल नहीं सकता है, And it is through faith. केवल विश्वास के द्वारा। If you believe अगर आप विश्वास करते हैं, today, तो आज के दिन in this Christ we are presenting to you, इस वक्त हम यीशु मसीह को आपके सामने रखते हैं, definitely He can do great things and wonderful things in your life to change you, transform you. अवश्य ही वो आपके जीवन में महान काम करेंगे ताकि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए। So you want to have any questions or
conversations or any doubts you have, please feel free to write to us. अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आपके मन में कोई शंका है तो निश्चय हमसे संपर्क कीजिए। Our telephone numbers are displayed on the screen. हमारी टेलीफोन नंबर इस समय आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। Please call according to the language you would like to interact with. आप जिस भाषा में हमसे बातचीत करना चाहते हैं उस भाषा के नंबर पर आप हमसे संपर्क If you want to कीजिए। interact in Tamil, call the Tamil language mobile. अगर आप तमिल भाषा में बात करना चाहते हैं तो तमिल नंबर डायल कीजिए। Or English or Hindi or whatever language you prefer, call that number. या इंग्लिश या हिंदी, आप जो भी भाषा चुनते हैं आप उस नंबर पर फोन कीजिए। You can also contact us at the divineconnection@hotmail.com. आप हमसे संपर्क कर सकते हैं thedivineconnection@hotmail.com पर। You can conveniently study about this good news we are presenting to you in our website messagesfromtheguru.org. हमारे इन सारे संदेशों को आप बहुत ही विस्तारित रूप में अध्ययन कर सकते हैं messagesfromtheguru.org पर जाकर। So as we approach Christmas and as we try to celebrate Christmas, please note that God cares for you and your family. और जैसे हम क्रिसमस में आगे बढ़ रहे हैं इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर आपकी और आपके परिवार की परवाह करते हैं, वो आपका बहुतायत से ध्यान रखते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number